بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے کتنے موسم آئے سفر میں۔ اگر کہانی پسند آئے تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، کیا یہ کسی فلم کا سین تھا یا کوئی کہانی جو میں نے پڑھی تھی۔ کافی دیر میں اپنے ذہن پر زور ڈالتی رہی اور پھر سارا منظر ایک بار پھر کسی ڈرامے کی طرح میرے ذہن میں واضح ہوتا چلا گیا۔ یہ نہ کسی فلم کا سین تھا، نہ کوئی پڑھی ہوئی کہانی، یہ میری اپنی زندگی کی کہانی کا ایک حصہ تھا، میری اپنی زندگی کا۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج شہریار نے جو کچھ کیا، ابو نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ آج سے 18 سال پہلے یہی سب کچھ تو ہوا تھا۔ اسی طرح میں اور میرے ساتھ چھوٹے بہن بھائی بڑے سے کمرے میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ امی سب سے چھوٹے کاشف کو مسحری پر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابو غصے اور بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے اور پھر جا کر کرسی پر بیٹھ جاتے۔ امی ایک نظر ان پر ڈالتیں اور پھر نفرت سے نظریں پھیر لیتیں۔ ہاں، اسی طرح تو ہوا تھا میرے ساتھ بھی۔ میں 2.5 سالہ طلحہ کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی اور 5 سالہ ثنا ڈری سہمی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار مضطرب سے ادھر سے ادھر ٹہلے جا رہا تھا۔ فوزیہ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شہریار کی آواز پر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ آنکھیں ملانے سے گریز کر رہا تھا۔ میری چھٹی حس نے میرے دماغ میں گھنٹیاں نہیں، ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میں اس بات کے بارے میں کئی لوگوں سے سن چکی تھی اور 1-2 بار اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ واپس پلٹ کر صوفے پر جا بیٹھا۔ ثنا نے 1-2 بار اس کے پاس جا کر بیٹھنے کی کوشش کی تو شہریار نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو کر مجھ سے چپکی بیٹھی تھی۔ میں بھی ایک نظر شہریار پر ڈال کر واپس طلحہ کے ساتھ لگ گئی۔ وہ اور دودھ مانگ رہا تھا، اس لیے میں کچن میں جانے لگی تو وہ ایک بار پھر چیخا، یہاں بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور ساتھ ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ بے چینی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا اور میں سکون سے بیٹھی تھی۔ فوزیہ، میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ ابا نے بھی بالکل اسی طرح سے امی سے کہا تھا۔ میں یوں ہی بیٹھی رہی، نظر اٹھا کر نہیں دیکھا شہریار کو۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھانا چاہا مگر اچانک ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے، کیا آواز نہیں آئی؟ اس نے چلا کر کہا۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر اسی سکون سے جواب دیا، سن لیا ہے میں نے، پھر جواب کیوں نہیں دے رہی؟ یہ صبر شاید مجھے ماں سے ہی ملا تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ امی اسی طرح بیٹھی رہیں اور وہ ابا کی عیاشیوں سے واقف تھیں۔ وہ تو بہت پہلے ہی انتظار میں تھی کہ ابا دوسری شادی کریں گے، مگر ابا نے اتنی دیر لگا دی چونکہ یہ ہونا تو تھا ہی۔ اس لیے امی بالکل صبر سے بیٹھی رہیں۔ انہیں فکر تھی تو بس یہ کہ اب 8 بچوں کی کفالت کیسے ہوگی۔ اس کے باوجود امی بالکل پرسکون تھیں۔ میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں، شہریار نرمی سے بولا۔ میرا جواب؟ میں کیا جواب دوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نظر چرا لیں۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ شہریار نے تیز نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں خاموش رہی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں میری شادی پر؟ میں ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا اعتراض کرنے پر تم کیا کرو گے؟ نہیں کرو گے دوسری شادی؟ شہریار نے میری بات پر جھنجلا کر مجھے دیکھا اور پھر دانت چبا کر بڑبڑایا، جسے میری خاموشی اذیت دے رہی تھی۔ تم مجھے اطلاع دے رہے ہو یا وارننگ؟ میری تیز آواز پر وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں تمہارے اور بچوں کے بارے میں فکر مند ہو رہا تھا۔ شہریار نے نرمی سے بچوں کی طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ شہریار نے سگریٹ جلاتے ہوئے مجھے دیکھا۔ ہاں، مجھے فکر ہے تمہاری، یہی کہا ہے میں نے، شہریار نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، فوزیہ تم کچھ دنوں کے لیے اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ۔ اس کے جملے پر میں نے بے قابو ہوتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ میں والدین کے پاس چلی جاؤں؟ اور یہ تمہاری اولاد، اس کا کیا ہوگا؟ میں نے دونوں بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شہریار نے حیرت سے مسکرا کر کہا، یہ دونوں تمہارے ساتھ رہیں گے؟ میں نے ابرو چڑھا کر کہا، کیوں؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ تم ان کے باپ نہیں ہو کیا؟
शहरयार बुरी तरह झुंझला रहा था। कमाल कर रही हो फौजी, ये भला मेरे साथ कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? मेरे साथ तुम्हारे बगैर रह सकते हैं तो क्या तुम्हारे साथ मेरे बगैर नहीं रह सकते? मैंने तनक कर कहा। अब्बा ने भी अम्मी से यही कहा था। शहरबानो, तो बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के घर चली जा कुछ दिनों के लिए। इस पर अम्मी ने बड़े नर्म आराम से अब्बा के करीब आकर कहा था। देखो फौजी के अब्बा, ठीक है तुम दूसरी शादी कर रहे हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, दूसरी क्या तीसरी भी कर लेना, मगर कान खोल कर सुन लो, मेरा बाप कोई लखपति नहीं है कि एक बार बेटी ब्याह दे फिर दोबारा बेटी को भी पाले, उसके शौहर की औलादों को भी। अगर तुम हमें घर से निकालना ही चाहते हो तो ठीक है निकाल दो, लेकिन पहले जाकर इस अपनी औलाद को हम सब की तरह इशारा करते हुए बोली, इन 8 बच्चों को लावारिस बनाकर किसी यतीम खाने में डाल आओ, फिर मैं खुद ही किसी दारुल उलूम में चली जाऊंगी, मगर याद रखना मैं अपने माँ बाप के घर हरगिज़ नहीं जाऊंगी। इस पर तो अभी 2 जवान बेटियों का बोझ बाकी है और मैं जाकर बोझ डाल दूँ इन पर। माँ की तकरीर से अब्बा पर खासा असर हुआ। उन्होंने दोबारा अम्मी को कहीं जाने का नहीं कहा, फिर खुद भी ना रुके और फिर ऐसे गए कि पलट कर सालों खबर ना ली। अगर अम्मी इस वक्त जज्बात में आकर घर से निकल जाती तो हमारी तो ये आखिरी छत भी चली जाती। हमारे 4 मामू थे और 4 मुमानियाँ। मुमानियाँ क्या 4 तलवारें थीं, बात भी ऐसे करती कि दूसरा बंदा अंदर तक ज़ख्मी हो जाता। अगर मामू कभी कभार कुछ दे जाते तो इन्हें बर्दाश्त ना होता, और अगर हम मुस्तकिल वहाँ जाकर पड़ जाते तो हमारा क्या हाल होता। जब मैंने होश संभाला और अम्मी ने अपने फ़ैसले के बारे में मुझे बताया तो मैंने लाख बार तन्हाइयों में शुक्र अदा किया था कि अल्लाह ने हमारी माँ को एक ऐसी अकल अता की थी बर वक्त। अब हम 8 बहन भाई अपने बाप के घर में सुकून से रहते थे, ना किसी का डर था ना किसी की फ़िक्र। हाँ, जो हमारी परेशानी और बाप की कमी थी वो तो हमेशा ही रही, मगर था तो हमारे बाप का घर। ये बात अम्मी ने कई बार मुझे अपने पास बिठाकर समझाई थी। यही वजह थी कि जब आज मेरे सामने मेरी औलाद की बारी आई तो मैंने इनका हर तरह से दिफा करना चाहा। शहरयार ने कहा, तो क्या तुम इन्हें अपने साथ अपने माँ बाप के घर नहीं लेकर जाओगी? मैंने नरमी से जवाब दिया, माँ बाप के घर तो मैं खुद नहीं जाऊंगी, तो इन्हें कैसे भेज दूँ? इसने हैरत से कहा, फिर कहाँ जाओगी तुम? चली जाऊंगी मैं किसी हॉस्टल या दारुल अमान में, मगर इससे पहले तुम्हें बच्चों के लिए ठिकाना तलाश करना होगा। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? शहरयार ज़ोर से चीखा। हाँ, तो इन्हें किसी यतीम खाने में दाखिल करवा दो, कम से कम सड़कों पर तो नहीं फिरेंगे। ये रख लो अपने साथ। इसे क्या खबर नहीं है कि तुम पहले से शादीशुदा हो और 2 बच्चों के बाप हो? तुम कैसी माँ हो अपने बच्चों को? मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, तुम कैसे बाप हो, अपनी औलाद को नहीं रख सकते और मुझे एक औरत को माँ होने का ताना दे रहे हो? शादी तुम दूसरी कर रहे हो, घर से तुम निकाल रहे हो और शर्मिंदा भी मुझे कर रहे हो। मैंने चीख कर कहा। इस पर वो काफ़ी नरम पड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें घर से तो नहीं निकाल रहा, इसके लिए तो मैंने दूसरे घर का इंतज़ाम किया है। बात पलटते हुए शहरयार ने सारी बात वाज़ेह कर दी। मैं खामोशी से उठकर किचन में चली आई और सुकून का सांस लिया कि कम से कम मेरे पैरों तले ज़मीन तो रहेगी। तरह के फीडर में दूध डालकर वापस बेडरूम में गई तो शहरयार जा चुका था। मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। मैं कुछ देर खड़ी रही, फिर बेड पर सना के पास आ गई। मम्मी पापा चले गए, हमको नहीं लेकर गए। मैंने इसकी आंखों को साफ करते हुए कहा, मम्मी लेकर जाएंगी अपनी बेटी को, आप क्यों रोती हो? मैं इसे चुप कराने की कोशिश में खुद को भी ना रोक सकी और इसको सीने से लगाकर फूट फूट कर रोती। मैं ये सोच रही थी कि अब क्या होगा, क्या वही जो मेरी माँ के साथ हुआ था? जैसे अब्बा इस दिन जाने के बाद से पलट कर नहीं आए। सालों हम इनकी शक्ल को तरस गए। अम्मी ने नौकरी कर ली थी, कपड़े सी कर और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर हमें पाला था। फिर जैसे जैसे हम लोग किसी काबिल हुए अपनी माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया और फिर 12 साल बाद तो अल्लाह सब के दिन फेर देता है, सो हमारे भी फेर दिए। मैंने पढ़ाई के साथ साथ कई नौकरियां की। भाई भी बड़े हो चुके थे, किसी ने पढ़ा, किसी ने हुनर सीखा, सबको ही अल्लाह ने किसी न किसी काबिल बना दिया। कहते हैं बाप के बगैर औलादें बिगड़ जाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। जिन्हें बिगड़ना होता है वो औलादें बाप के साए में भी बिगड़ जाती हैं, ये तो नसीब होता है माँ बाप का। मेरी माँ बड़ी नसीबों वाली थी कि हर औलाद फर्माबरदार और एक से बढ़कर एक थी। जब अल्लाह ने हमारे दिन फेर दिए तो हमारा बाप भी लौट आया।
पूरे 12 साल बाद अब्बा आए थे, बीमार, कमज़ोर, ढांचा हो रहे थे। अम्मी तो इन्हें देख कर तड़प कर रह गईं। मैं सोच रही थी कि क्या करूं। भाई मुंह मोड़े खड़े थे। अम्मा ने हुक्म दिया कि बाप के गले लग जाओ। माँ का हुक्म सुनकर हम लोग बाप के गले लग गए। अब्बा की ऐसी हालत थी कि क्या इनसे इंतकाम लिया जाता? आखिर वो बाप थे। सीने से लगाया तो जैसे सारे गिले शिकवे इन आंसुओं से मिट गए जो उन्होंने हमारे साथ मिलकर बहाए थे। तलहा और सना को गोद में लिए मैं यही सोच रही थी कि क्या मुझे भी 12 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं अपने खाली घर को देख रही थी। 3 कमरों का ये घर शहरियार ने शादी पर मेरे नाम कर दिया था, वो भी इसलिए कि मैंने बरी वगैरह बनाने से बिल्कुल मना कर दिया था। जब शहरियार की अम्मी रिश्ता लेकर आई थी तो मैंने अम्मी से पहले ही कह दिया था कि इन्हें बता दीजिएगा कि हम ना जहर देने के कायल हैं ना ही बरी। हमें कुछ चाहिए। बस यही बात शहरियार को पसंद आई और इसने एक छोटा सा मकान मेरे नाम कर दिया। उठते बैठते मुझे यही बात परेशान करती कि अब ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। शहरियार को गए हुए 8 दिन हो चुके थे। ना ही फ़ोन आया था ना ही वो खुद। घर में पैसे भी ख़त्म होते जा रहे थे। छोटे बच्चों का साथ था और फिर बच्ची को बाप की याद भी बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मैं ऐसी चीज़ों से ही बहला रही थी। हफ्ते बाद मैंने सोचा कि बैंक में जाकर अकाउंट का पता करूं। कुछ है भी कि वो भी खाली हो चुका है। तलहा को बराबर में अलमास के घर छोड़कर बैंक गई। वहाँ जाकर पता चला तो तसल्ली हुई कि अभी थोड़ी रकम मौजूद है, मगर वो भी कब तक चलेगी। घर आने के बजाय मैं वाजिद के घर चली गई। वाजिद भाई शहरियार के ऑफिस कॉलीग थे। इनकी बीवी फरीदा मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। फरीदा घर पर अकेली थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे। मैंने खुद से कुछ नहीं कहा। फरीदा ने खुद ही मुझे सारी दास्तान सुनाई। शहरियार ने हिना नामी लड़की से शादी कर ली थी। इसे मैं देख तो चुकी थी। एक बार मैं सना को स्कूल से ला रही थी कि इसने बोतल की ज़िद कर दी। मैंने रिक्शे वाले को तारिक रोड चलने को कहा। रास्ते से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी। अचानक ही मेरी नज़र शहरियार पर पड़ी। इसके साथ कोई लड़की भी थी। मैंने बढ़कर आवाज़ देनी चाहिए, ये समझ कर कि शायद ऑफिस कॉलीग होगी, मगर इसका अंदाज़ कुछ ऐसा था कि मैं इन्हें नहीं रोक सकी। फिर जब मैंने शाम को शहरियार से पूछा कि आप दोपहर तारिक रोड पर थे तो फ़ौरन ही मुकर गया। यही बात इसकी मुझे शक में मुब्तला कर गई। फिर अक्सर ऐसा होता कि मैं फ़ोन करती तो मीटिंग के बहाने दफ्तर से गायब होता। बात अब खुलकर सामने आ चुकी थी। पहले तो वो मुकर जाता था, मगर अब वो फ़ौरन ही इकरार कर लेता था। ये बात भी मुझे फरीदा ने ही बताई थी कि लड़की हिना कोई पार्लर चलाती है। न जाने किस तरह इसकी मुलाकात शहरियार से हुई, फिर वो इसी की होकर रह गई। वाजिद भाई ने भी कई बार रोका, मगर शहरियार ने इन्हें बुरी तरह जलील कर दिया। शहरियार के सर पर तो इश्क का भूत सवार था। रातों को देर से घर आता, न नाश्ता करता न दफ्तर में ठीक तरह से काम करता था। सारा दिन से लिए फिरता और अब शादी कर ली थी। फरीदा ने ही बताया था कि उन्होंने एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ है। आजकल हनीमून के लिए मरी सवाद गए हुए हैं। ऑफिस से 2.5 महीने की छुट्टी पर हैं। मैं हैरान थी कि जब मेरी शादी हुई थी तो हम सिर्फ 7 दिन के लिए मरी गए थे। इस पर शहरियार का ये आलम था कि खर्चा ज़्यादा ना हो जाए। और अब मैं जल्दी से उठकर सीधी सना के स्कूल गई, इसे लिया और फिर घर आ गई। 1 माह गुजर चुका था। मैंने अपनी पुरानी वाली जॉब शुरू कर ली थी। तला को सुबह अम्मी के हाथ छोड़ कर जाती। वैन वाला सना को अम्मी के यहाँ ही उतारता। शाम को इन दोनों को लेकर घर आ जाती। मैंने किसी से नहीं कहा कि शहरियार हमें छोड़ गया है, मगर माँ से कोई बात छुपी नहीं रह सकती। बिलाखिर अम्मी के कुरेदने पर मैंने इन्हें तमाम हकीकत से आगाह कर दिया। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, फौजी बेटा, तुमने ठीक फैसला किया, मगर देखो सबकी किस्मत मेरी जैसी नहीं होती और ना ही सबकी औलाद तुम्हारे जैसी। कहीं सारी ज़िंदगी ये तन्हाई का अजाब ना लग जाए। मैंने सर झुकाते हुए कहा, अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, पछतावों के पीछे नहीं भागूंगी। मैं आपकी तरह बहादुर हूँ। तलहा और सना ही अब मेरी मंजिल हैं। 6 माह इसी तरह से गुजर गए। मैंने तलहा को भी स्कूल में दाखिल करा दिया। मेरी फ़िक्र भी ख़त्म हुई। अम्मी की परेशानी भी दूर हुई। अब तो जैसे वो लोग भी भूल चुके थे। दिन एक ही तसलसल से गुजर रहे थे। रात को जब बिस्तर पर लेटती तो एक पल के लिए शहरियार का ख्याल आता, फिर दूसरे पल जैसे सारी थकावट इस पर हावी हो जाती। साल इसी तरह गुजर गया। सना की सालगिरह थी।
वो आज पूरे 6 साल की हो चुकी थी। बातें करना भी खूब आ गई थी। अक्सर शहरियार की तस्वीर देखकर मुझसे कहती, अम्मी पापा ने दूसरी शादी कर ली है तो वो हमें कभी नहीं मिलेंगे। जैसे लोग मर जाते हैं ऐसे पापा भी मर गए। मैंने चौंक कर सना को देखा। बेटा आपके पापा तो जिंदा हैं, वो मरे तो नहीं। लेकिन मम्मी मेरी सहेली आरफा के पापा भी मर गए। वो कह रही थी वो कभी नहीं आएंगे, बहुत दूर चले गए हैं। मैंने तड़प कर उसे गले से लगाते हुए कहा, बेटा जो मर जाते हैं ना वो कभी नहीं आते। हमारे पापा आ जाएंगे कभी? इसने फ़ौरन ही खुश होकर पूछा तो मैंने मुस्कुराकर सर हिलाकर कहा, हाँ बेटा कब आएंगे पापा? आखिर कब? मम्मी क्या आज और अभी आ जाएंगे? इसने रोते हुए ज़िद की। वो एकदम ही ज़िद में आ गई थी। बेटा आप अल्लाह से दुआ करोगी तो आपके पापा आ जाएंगे। अल्लाह ताला छोटे बच्चों की दुआ फ़ौरन सुन लेता है। मैंने हलक में आंसू निकलते हुए कहा तो उसने फ़ौरन ही अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर दुआ के लिए उठा दिए। अल्लाह मियाँ मेरे पापा को भेज दें। मेरे पापा ज़िंदा हैं, आरफा के पापा की तरह मरे नहीं हैं। मेरी सालगिरह है ना, आज अल्लाह मेरे पापा को भेज दें। मैं इसकी मासूम बातें सुनकर अपने दिल पर काबू न रख सकी। कितनी देर रोती रही। वो भी मुझे रोता देखकर खुद भी रोने लगी। मेरे करीब सोया हुआ तलहा जाग गया। वो हम दोनों को हैरानी से तक रहा था। मैंने इसे गले लगा लिया। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सना खुशी से उछल कर भागी। मेरे पापा आ गए। अल्लाह ने पापा को भेज दिया। मेरे पापा आ गए। वो खुशी से उछल रही थी। मैं हैरान थी कि आज इसने कैसे जिद की। साल भर में कभी भी इसने अपने पापा को इस तरह याद नहीं किया। आज इसे क्या हुआ? मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अलमास का छोटा बेटा खड़ा था। आंटी अम्मी ने आपका बिजली का बिल भेजा है। मैं हमेशा इन्हीं से बिल जमा करवाती थी। सना टेबल नबील को देखकर बहुत मायूस हुई। अम्मी पापा तो नहीं आए। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, आ जाएंगे बेटा। आप ये बताओ केक कौन सा लोगी? मैंने बात बदलते हुए कहा, मगर वो किसी तरह राज़ी ना हुई। बड़ी मुश्किल से मैं इसे बाज़ार लेकर गई। इसकी पसंद की सभी चीज़ें खरीद डाली। 2000 रुपये खड़े खड़े ख़त्म हो गए। मगर इसे हर थोड़ी देर बाद पापा की रट लग जाती। घर में लाकर चीज़ों के ढेर देखकर सर पकड़ लिया। क्या क्या कबाड़ खरीद डाला था मैंने, मगर क्या करती। केक मेज़ पर सेट किया, नए कपड़े पहनाए, पोनी बांधी। फिर 6 कुर्सियों की टेबल पर मैंने एक पर सना को बिठाया, एक पर तलहा को। 3 कुर्सियों पर गुड़िया भालू मिक्की माउस को बिठाया। एक पर खुद बैठ गई तो सना ने भालू को उठाकर दूर फेंक दिया। यहाँ पापा बैठेंगे। मैं खामोशी से उसे देख रही थी। अच्छा अब केक काटो। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, नहीं जब पापा आएंगे तो केक काटूंगी। वो अकड़ कर दोनों कोहनियों को मेज़ पर टिका कर बैठ गई। मुझे इस वक्त इस पर तरस भी आया और टूट कर प्यार भी आया। तलहा चुपचाप इसे देख रहा था। दरवाजे पर एक बार फिर बेल हुई तो फिर उछल कर खड़ी हो गई। पापा आ गए, पापा आ गए। तलहा ने बहन को खुशी से नाचते देखकर खुद भी शुरू हो गया, पापा आ गए, पापा आ गए। मैं सर पकड़कर वहीं बैठी हुई थी और मेरी आंखों से आंसू टपक टपक कर टेबल पर गिर रहे थे। जब दोबारा बेल हुई तो मुझे उठना ही पड़ा। दरवाजे के करीब दोनों मुझसे पहले पहुंच गए। मैंने जूं ही दरवाज़ा खोला तो सना फ़ौरन ही चिल्लाई, पापा आ गए, पापा आ गए। अल्लाह मियाँ ने मेरे पापा को भेज दिया। मैंने इसकी आवाज़ में एक अजीब सी खुशी महसूस की। मैंने तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा पीछे धकेल दिया। सामने ही शहरयार खड़ा था। इसने तेज़ी से बच्ची को अपने साथ लिपटा लिया। मेरी आंखों में आए आंसू ने शहरयार के अक्स को धुंधला दिया था। वो घुटनों के बल बैठा दोनों बच्चों को भीज भीज कर प्यार कर रहा था और सना खुशी से बेताब हुई जा रही थी। मैं हैरान शज़र खड़ी थी। बच्चों के शोर ने एक अजीब सा समा बांध दिया था। मैं वहीं खड़ी थी। शहरयार अंदर आ चुका था। मैंने पलट कर जाना चाहा तो शहरयार ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे रुकना ही पड़ा। मैं सर नीचे किए खड़ी थी। फौजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं लौट आया हूँ तुम्हारे पास हमेशा के लिए। मैं यूं ही खामोश खड़ी सोच रही थी, ये मेरे सब्र का फल है या मेरी मासूम बच्ची की दुआ का नतीजा था। तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आने की? इसने मुझे खामोश देखकर कहा। मैं इसी माँ की ही बेटी थी ना, जिसने 12 साल बाद भी अपने शौहर को एक पल में माफ़ कर दिया था। मैं भला क्यों ना करती। शहरयार तो फिर भी जल्दी लौट आया था। सना को देखकर तलहा भी
شہریار سے چمٹ رہا تھا۔ میں مسکرا کر شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ میں اسے مایوس کرنا نہیں چاہتی تھی اور اسی میں بہتری تھی۔